हेलो एवरीवन। हम लोग वापस एक बार फिर से ये इंस्टा लाइव पे हमारा मेंटल हेल्थ अवेयरनेस एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसे जैसे लोग ज्वाइन होते जाएंगे हम बात करते जाएंगे आगे आगे। एंड we are just waiting for our doctor and other people to join. Let us wait for few minutes. Let us wait for a few minutes and then we will start our Insta live activity. Hi, doctor. Hi, how are you? Good afternoon. Good afternoon. How are you? I am fine, thank you. Let me adjust my camera. Now it's fine. Yeah. Is my camera fine? Or should I? Yeah, your camera is fine, absolutely fine. It is visible and your face is visible. Your voice is also clear. So, yeah. My voice is clear? Am I audible? I think. Hello everyone for joining on this Insta live on this Sunday. And I'm just waiting for a doctor to join. And yes, Mr. Baudeep and Mr. And Reena and Ashmima, all you are welcome on this Insta live session. And yes, I'm waiting for Dr. Sneha to join. So I hope all you are doing well and you are enjoying your weekend, because this is a long weekend and probably tomorrow is also a holiday. So people are enjoying their weekend with their family. And the topic today, what we are going to discuss is pregnancy and mental health. We'll just wait for 2-3 minutes and then we will start our live. We are just waiting for doctor to join. We are waiting for the people to come in. Hi, Dr. Jyotik. Sorry, I think there was some internet issue. No, it's okay. It's okay. And people are still joining, so we'll wait for 2-3 minutes and then we will start this Insta live. Yes. Hello, everybody. First, I would like to start by introducing our Dr. Jyotik. Dr. Jyotik Bhachej is a psychiatrist and a psychotherapist with 10 years of experience in the field of mental health. He's working in areas of dealing with psychiatric disorders, mental health awareness, child and youth psychiatric issues, de-addiction issues, etc. He has been working in government as well as private setups. He has published a lot of papers in National Journal, and he is an enthusiast in everyday psychiatric issues, and he actively participates in TV shows, discussions, and lectures at various institutes. His FB Live with Dr. Jyotik is a mental awareness activity which is been there since 2 years, I believe, and it is a monthly activity. And he involves a lot of masses in these. He engages a lot of masses in these activities. And last but not the least, he has a hobby of photography, and he believes that creativity heals mind. Over to you, Dr. Jyotik. Thank you, doctor, for that elaborate introduction and for those kind words which you have told about me. Thank you for that. And people are joining. Mr. Raju, Mukhtar, everyone, I welcome you on this Insta live. So I may not name everyone, but you all are welcome on this Insta live. And to introduce Dr. Sneha Nayak Samant.
She is a consultant psychiatrist in Mumbai. She has been practicing since 5 years from now. She is a firm advocate of mental well-being and destigmatization of mental health illnesses. Also, she believes that reluctance to seek help of a mental health professional causes a lot of suffering to patients and their family. And Dr. Sneha takes a keen interest in women's mental health and mental health of elderly and actively promotes the same. So, with this interest of yours, Dr. Sneha, we are, I think, starting this Facebook, this maybe Insta Live, sorry for that, Insta Live of pregnancy and mental health. And I hope everyone is good in between. I would like to just clarify थिंग्स कि ये जो लाइव है ये सिर्फ मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेसेस यानी कि साइकियाट्रिक इलनेसेस एंड साइकोलॉजिकल इश्यूज अबाउट प्रेगनेंसी यही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. ये हमारे पर्सनल कुछ एक्सपीरियंसेस है, कई क्लाइंट्स के साथ एक्सपीरियंसेस हैं और इट इज नॉट रिलेटेड टू एनी इंडिविजुअल और पर्टिकुलर केसेस और एनी स्पेसिफिक केसेस. सो हम फिजिकल हेल्थ के बारे में इसमें कोई डिस्कशन नहीं करने वाले हैं. तो अगर आप लोगों को कोई सवाल है, आप लोगों को कोई कमेंट्स है, तो यू कैन जस्ट टाइप डाउन योर कमेंट्स, योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन. दिस कमेंट्स आर ऑन माय स्क्रीन. और at the end of the live we will address one or two which are relevant to this topic. Yes, I think we are on time, so let us start this Insta live. So pregnancy Yes. के बारे में अगर बात करूं तो it feels really exciting and enthusiastic on my part because I'm a father of a 7-year-old child. And jab it has been now a 7 years journey being a parent, but pregnancy per se on a general aspect if we consider, so it is a phase of a change. और प्रेगनेंसी के बदलाव जो है वो सिर्फ इंडिविजुअल बदलाव नहीं है. हमारे सोसाइटी में, हमारे एक सोशियो कल्चरल सिस्टम में ऐसा ही रहता है कि विमेन प्रेग्नेंट है, फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसको ही बदलना जरूरी है, क्योंकि प्रेगनेंसी में तो उसके शरीर में बदलाव आएंगे, करियर में बदलाव आएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, रोल एज अ पेरेंट है, या फिर पर्सनालिटी में बदलाव आएंगे. और प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी हो जाती है तो पूरी लाइफ एक बदलाव के साथ हर दिन चलती चली जाती है. और यही बदलाव को काफी लोग जो हैं वो अपने अपने नजरिए से देखते रहते हैं. तो ये बदलाव वाली जो बात है ये शुरुआत में तो काफी सरप्राइजिंग, एक्साइटिंग और एंथुजियास्टिक या हैप्पी गो लकी टाइप चलती चली जाती है कि जब न्यूज मिलती है कि प्रेगनेंसी हुई है या अ फीमेल इज प्रेग्नेंट, तो जब ये प्रेगनेंसी प्लान्ड हो या कई बार हस्बैंड वाइफ में अगर प्रेगनेंसी प्लान्ड होती है तो इसकी खुशी ना ही सिर्फ कपल को महसूस होती है पर पूरे परिवार को महसूस होती है. और एक क्यूरियोसिटी वाली जो बात चलती है कि अभी क्या होगा, जैसे हर एक महीना, जैसे हर एक मंथ चलता जाता है आगे आगे, तो बॉडी पे चेंजेस आते हैं, साथ साथ में मन में भी काफी चेंजेस आते रहते हैं. तो जो नॉर्मल इमोशंस जो प्रेगनेंसी के साथ जुड़े हुए हैं वो ये है कि शुरुआत में सरप्राइज या उत्साह होता है कि बच्चा या बेबी कैसा होगा, मैं एज अ पेरेंट उसको कैसे देखभाल करूं, या एज अ कपल हम उसके लिए क्या प्लानिंग करें, कैसा बचपन उसको दें. और एज अ फैमिली अगर लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो दादा दादी भी है, चाचा चाची भी है, तो पूरा परिवार प्रेग्नेंट लेडी के इर्द गिर्द उसके केयर टेकिंग में जुड़ जाता है. और डॉक्टर को रेगुलरली चेकअप कराना, साथ ही साथ अच्छे पॉजिटिव बातें बोलना, पॉजिटिव चीजों को पढ़ना, ये सब एक्टिविटीज एक वन बाय वन इंक्लूड होती जाती है. तो सबसे जो कॉमन इमोशन जो परिवार में या कपल में या इंडिविजुअली प्रेग्नेंट लेडी जो शुरुआत के महीनों में महसूस करती है वो ये पॉजिटिविटी या हैप्पीनेस का इमोशन होता है. बात जब ये आगे चलती है, जब भी तीसरा चौथा महीना शुरू हो जाता है तो वो पॉजिटिव इमोशन अलग तरीके के इमोशन में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि उस टाइम फिजिकल चेंजेस शुरू हो जाते हैं, जैसे मॉर्निंग सिकनेस होना,
यानी कि उल्टी होना, वजन का बढ़ना, शरीर में थोड़ा अनकंफर्टेबल फीलिंग शुरू हो जाना, तो ये सब चीजें जो फिजिकली हो जाती है, तो उसके साथ इमोशनली भी अंदर अंदर एक माइक्रो लेवल की चिंता भी शुरू हो जाती है कि ये सारे चेंजेस हो रहे हैं, तो उसके लिए अलग तरीके की दवाइयां लेने की जरूरत है, या डॉक्टर को बारी बारी से चेकअप कराने की जरूरत है। और अभी तो क्या है कि 4D सोनोग्राफी का जमाना है, तो लगभग थर्ड या फोर्थ मंथ में तो हमको पता चलने लगता है कि बेबी का डेवलपमेंट कैसा है, उसका फेस कैसा होगा, उसके ऑर्गन्स डेवलप होने शुरू हुए हैं कि नहीं। तो इसके साथ एक अंदर ही अंदर एक चिंता भी शुरू हो जाती है, और साथ ही साथ मूड स्विंग शुरू हो जाते हैं कि कुछ चीजों के प्रति लगाव होता है, कुछ खाने की चीज के प्रति लगाव हो जाता है, कुछ अंदर से एक क्रेविंग होता है कि कुछ ही प्रकार के फूड आइटम्स पसंद हो, तो उसके साथ एक मूड स्विंग्स यानी कि एंगर भी जुड़ जाता है। मैं जो बात कर रहा हूं वो सारे नॉर्मल इमोशंस की बात कर रहा हूं। तो जैसे जैसे डिलीवरी के महीने नजदीक आ जाते हैं, तो वही डिलीवरी कैसे करनी है, सिजेरियन करना है, नॉर्मल डिलीवरी होगी या नहीं, या फिर डॉक्टर के साथ सलाह मशवरा करके उसको कैसे हम, क्योंकि काफी लोग अभी डेट भी प्लान कर रहे होते हैं कि किसी को वैलेंटाइंस डे के दिन चाइल्ड बर्थ चाहिए, किसी को 1 जनवरी के दिन Yes. चाइल्ड बॉर्न चाहिए। तो ये सारी सब चीजें प्लानिंग लास्ट ट्राइमेस्टर में होती है, तो उसकी अलग प्रकार की एक एक तैयारियां चलती जाती है। तो कुल मिला के जो 9 महीने रहते हैं, वो हर एक महीने एक अलग चेंज को इनविटेशन देते हैं, और चेंज जो है वही ये 9 महीने का इमोशन जो रहता है। तो मैं डॉक्टर आपको ये एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि ये तो एक नॉर्मल इमोशनल पैटर्न चलती है, तो एक स्टैटिस्टिक्स ये भी कहता है कि ऑलमोस्ट 1 in 5 ऑफ द प्रेग्नेंट लेडी हैज सम और द अदर मेंटल हेल्थ इश्यूज ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी। तो आप उस पर थोड़ा फोकस डाल पाए, आप उस पर थोड़ी जानकारी दे पाए कि व्हाट आर दी एबनॉर्मल इमोशंस और व्हाट आर दी साइकियाट्रिक इश्यूज ड्यूरिंग एंड आफ्टर दी प्रेगनेंसी। Right. Thank you, Dr. Jyotik, for asking me this question or for having me here today. So I would like to reiterate that yes, pregnancy and childbirth is a special moment in a woman's life rather than a couple's life. And the common reaction would be happiness and excitement. But in some cases, that might not be the thing. For example, some women, they suffer from various mental health illnesses during this period of time because of various causes. The hormones are all over the place. A lot of things are changing in the body, etc. The most common, I would say, is depression. डिप्रेशन जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी होता है एंड पोस्ट प्रेगनेंसी भी होता है, जिसको हम लोग कहते हैं पोस्ट पार्टम डिप्रेशन. नाउ दिस इज सो कॉमन कि ये 1 in 10 फीमेल में होता है पोस्ट डिलीवरी, right? So in this depression में you might know that the symptoms would be sadness of mood, जो कि almost पूरे दिन तक चलता है, या for the major part of the day there is low mood, loss of interest in previously pleasurable activities. पहले जो चीजें अच्छी लगती थी अभी वो अच्छी नहीं लगती. Apart from that, appetite changes, sleep disturbances. There can be a lot of negative thoughts about yourself, your baby, the situation you're in, right? इसके साथ ही साथ sometimes suicidal thoughts also come in, and in this there might be thoughts of harming yourself, or sometimes it might even be harming the baby actually. इसके बाद आता है anxiety disorder. So anxiety disorder, it's also quite common in pregnancy, also post pregnancy or postpartum period, जिसको कहते हैं हम लोग. In that there is a lot of restlessness. The woman feels that she is on edge. There are a lot of worrying thoughts about the baby's health, future कैसे होगा, finances, which doctor to go to, which doctor to not go to. So this anxiety or these worrying thoughts are there for most of the day, or for major part of the day, right? इसके बाद देखा जाए तो there is something called as obsessive compulsive disorder, जिसको हम short में OCD कहते हैं.
So in this, there can be recurrent thoughts about some particular thing which you're just not able to get out of your head. Like these thoughts could be about cleanliness or hygiene, whether I am keeping my baby clean, whether I am taking proper care of the hygiene, मैं diapers बदल रही हूँ कि नहीं, उसके bottles अच्छे से धो रही हूँ कि नहीं, etc. So these are the kind of recurrent thoughts, worrying thoughts that come into the mind. So what happens is, in order to, जिसकी वजह से बहुत anxiety होती है, so in order to decrease this anxiety, some women, they do certain kind of rituals or compulsions कि ये अगर मैं करूंगी तो मेरी एंजाइटी थोड़ी कम हो जाएगी, ये अगर मैं करूंगी तो शायद जो मेरा फियर है वो कम हो जाएगा. So what they might do is excessive cleaning of bottles, बार बार बॉटल स्टेरलाइज करना, बेबी को बार बार नहलाना, डाइपर्स बार बार चेंज करते रहना, खुद बार बार नहाना, क्लीनिंग. So what happens is, all these activities, they end up taking a lot of time of the woman. तो she is not able to enjoy the other aspects of motherhood. समटाइम्स लगता है उनको कि ये थॉट आ गया कि मेरे बेबी को कोई हर्ट ना कर दे, मेरे बेबी को कोई हार्म ना कर दे, तो वही चिंता में पूरा दिन वो लगी रहती है, जिसके वजह से बेबी के साथ खेलना या फिर बेबी को हक करना, ये सब चीजों में वो उतना ध्यान नहीं दे पाती है. द बॉन्डिंग प्रोसेस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. इसके अलावा देयर इज समथिंग कॉल्ड एज साइकोसिस, right? ये again, this can happen during the pregnancy or postpartum psychosis, जिसको कहते हैं. So this is seen in 1 in 1,000 pregnant women, right? तो ये थोड़ी सी सीवियर चीज हो गई. So इसमें ये ऐसा होता है कि the mother or the pregnant woman, she loses touch with reality. मतलब what she thinks is that there is somebody who is out there to harm me, कोई मेरे बच्चे को कुछ कर देगा, कोई मुझे ऑब्जर्व कर रहा है. कभी कभी उनको हेलुसिनेशंस होने लगते हैं, इन द सेंस शी कैन हियर सम वॉइसेस एंड देन देयर इज एक्चुअली नोबडी, शी कैन सी सम थिंग्स, सो ये सब चीजें होती है. एंड द थिंग दैट इज मोस्ट वरीसम इन दिस साइकोसिस इज दैट कि sometimes the mother might want to harm the child, and there have been cases when the mother has managed to do that, and that is why it is a little, something which we need to be very cautious about, right? And last would be, there are many other illnesses, but the main ones would be bipolar disorder, जो एक mood disorder है, right? इसको हिंदी में मैं और मेरे सीनियर्स कभी खुशी कभी गम की बीमारी कहते हैं. So what happens in this is, there are episodes of mania and there are episodes of depression. So depression, as you know, would be sadness of mood and negativity, etc. And mania और hypomania, जो mania का थोड़ा छोटा भाई होता है, उसमें ये होता है कि you feel like extreme excitement, बहुत ज्यादा खुशी लगती है, हद से ज्यादा बातें करने लगते हैं, बहुत ज्यादा ओवर एनर्जेटिक फील होने लगता है. एंड दिस इज नॉट समथिंग विच इज आउट. सी, हैप्पीनेस फील करना इज वेरी नॉर्मल आफ्टर प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बट ये थोड़ा नॉर्मल से ज्यादा होने लगता है, right? So these are few of the illnesses, and one एक major चीज जो है, जो body image changes जो होते हैं, some female find it difficult to handle वो जो बॉडी में जो चेंजेस होते हैं, पहले कपड़े जो फिट होते थे अभी नहीं होते हैं, या फिर जो स्ट्रेच मार्क्स हो गए हैं बॉडी में, प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग को लेके इश्यूज. सो ऑल दीज थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ द मेंटल हेल्थ, or rather the mental health disorders that you will see in pregnant or in postpartum period, right? Dr. Jyotik, can you please put some light on the substance use that happens during pregnancy, और उससे क्या problems हो सकती है? नहीं, आपने बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया है that what are the psychological और psychiatric issues during the pregnancy. और इसमें एक दो चीज मैं और इलॉबरेट करना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि हर फीमेल को ये डिसऑर्डर्स होते हैं, बट दीज आर वेरी कॉमन.
तो yes, जो कॉमन चीजें हैं वो हम काफी टाइम मिस कर जाते हैं। हम ऐसे समझते हैं कि वो तो फिजिकल नॉर्मल चीजें हैं भाई, जैसे चाइल्ड बर्थ हो जाएगा ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी, तो ये सब नजरअंदाज हो जाती है, इसको ऑब्जर्वेशन में हम कभी लाते ही नहीं है। पर जैसे डॉक्टर स्नेहा ने बताया है कि ये सारे जो सिम्टम्स है, दिस कैन हैपन टू अ प्रेग्नेंट लेडी। तो जो भी लोग बाद में भी इस इंस्टा लाइव पे जुड़े हुए हैं, नियति कपाड़िया, राहुल, रिद्धि एक्सेट्रा, ऑल द पीपल, आई वेलकम यू ऑन दिस इंस्टा लाइव। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे कोई रिलेटिव्स भी अगर प्रेग्नेंट अगर हैं तो वी शुड कीप अ वॉच, बिकॉज दिस साइकोसिस, दिस ओसीडी, ये सारी चीजें जो सीरियस साइकेट्रिक डिसऑर्डर में आती है। और जब बात सब्सटेंस यूज यानी कि व्यसन की आती है, तो हम लोग ऐसा समझते हैं कि व्यसन जो है बराबर, वो इट इज ऑल्सो समवॉट सोशियो कल्चरली एक्सेप्टेबल काइंड ऑफ बिहेवियर। आप लोगों को सुन के सरप्राइज होगा कि फीमेल्स आर स्मोकिंग एंड फीमेल्स आर हैविंग दिस टोबैको यूज और अल्कोहल यूज, इट इज वेरी मच कॉमन इन ऑल द क्लासेस ऑफ द सोसाइटी। और काफी टाइम ऐसा होता है कि प्राइमरीली कोई दूसरा मानसिक रोग है या दूसरी मानसिक तकलीफ है, तो वो मानसिक रोग को कॉम्पेंसेट करने के लिए भी ये तंबाकू है या सिगरेट स्मोकिंग है, अल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो करते रहते हैं ताकि अपना माइंड रिलैक्स रह पाए। तो सब्सटेंस यूज जो है वो सीधा आपके चाइल्ड के हेल्थ पे अफेक्ट करता है। द बेबी विच इज ग्रोइंग इन द वॉर्म, उसके डायरेक्टली ग्रोथ पे कोई भी सब्सटेंस आप ले लो, इसमें एक काफी लोगों को एक बायस है कि भाई मैं ज्यादा चाय पी सकती हूँ या ज्यादा कॉफी पी सकती हूँ या जब भी मूड करे मैं एक सिगरेट ले सकती हूँ, बट दैट वन cigarette or two cigarettes may lead to stillbirth in your baby, या उनको ऑर्गन डिफेक्ट्स हो सकता है या ब्रेन डेवलपमेंट डिफेक्ट हो सकता है। और जो जो फीमेल्स अल्कोहल कंज्यूम करती है उनको आफ्टर चाइल्ड बर्थ फीटल अल्कोहल सिंड्रोम होने की संभावना रहती है, यानी कि चाइल्ड में अल्कोहल विड्रॉल के सिम्टम आने लगते हैं। तो जो महिला है जिसको व्यसन है या कोई नशे वाली चीज अगर ले रहे हैं, देन डेफिनेटली यू शुड इन्फॉर्म योर गायनेकोलॉजिस्ट और उसका साथ साथ ट्रीटमेंट करना जरूरी है। तो ये जो सब्सटेंस की बात मैंने आपको बताई, इसके साथ ये और एक बात जुड़ी हुई है कि वल्नरेबिलिटी फैक्टर्स, की कौन सी महिलाएं हैं या कौन सी फीमेल्स हैं जिसको साइकियाट्रिक इलनेस होने की संभावना है, रिस्क या एट रिस्क है। तो जो लोग को ऑलरेडी साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है बिफोर द प्रेगनेंसी, या फिर जो लोगों को पर्सनालिटी इश्यूज है, some people are very impulsive or some people are having very mood swings kind of personality, या फिर जिनको इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटीज है, या फिर जिसको बैड ऑब्स्टेक हिस्ट्री यानी कि बच्चे की पोजीशन ठीक नहीं है, या ट्विन प्रेगनेंसी है, या कई बार सोनोग्राफी में एबनॉर्मल सोनोग्राफीज आती है, या फिर देयर आर फिजिकल डिसऑर्डर्स लाइक थायराइड डिसऑर्डर्स और इवन ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, या फिर एज फैक्टर की एट अ लेटर एज में भी बियॉन्ड 35 और बियॉन्ड 40 अगर प्रेगनेंसी रहती है, तो देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग साइकोलॉजिकल और साइकियाट्रिक इश्यू। बीच में आपने डॉक्टर ये बताया कि डिप्रेशन होता है, तो आमतौर से मैंने ऐसा सुना है कि आफ्टर चाइल्ड बर्थ काफी काफी महिलाएं वो लो फील करती है, जिसको बेबी ब्लूज बोलते हैं। तो आप उसके बारे में थोड़ा डिफरेंशिएट कर पाए कि डिसऑर्डर कब बोलते हैं और बेबी ब्लूज कब बोलते हैं, आप उसके बारे में थोड़ा बात बता पाए। right. So, baby blues is something which is seen post delivery. 1 or 3 days में वो आने लगता है, and it is seen in 70% of the females. So it is very commonly seen. Now baby blue, the symptoms would be feeling low, थोड़ा मूड चेंजेस होना, थोड़ी सी एंजाइटी फील करना, बिकॉज नेचुरली you are a new mother, you don't know how to take care of the baby is so tiny that it tends to make you a little मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, तो it does cause some sort of anxiety. उसके बाद there are a little bit of sleep changes, the appetite changes होने लगते हैं, irritability जैसे मैंने बोला. So these things do happen, and they happen commonly to women post pregnancy because it is that adjustment phase, right? But in a period of 1 week या 14 दिन या 2 हफ्ते में ये निकल जाता है, अपने आप निकल जाता है. You don't have to do anything, कोई ट्रीटमेंट की इसको जरूरत नहीं पड़ती है, right?
बट जो पोस्ट पार्टम डिप्रेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज अ लिटिल बिट सिवियर फॉर्म ऑफ बेबी ब्लूज. 1 in 10 females actually have postpartum depression. एंड यहाँ पे एक मैं फैक्ट शेयर करना चाहूंगी कि नॉट जस्ट women, even the new fathers also end up going into depression during this period, और ये काफी commonly होता है, right? So postpartum depression में what would you see is that extreme sadness of mood. ठीक है, क्राइंग स्पेल्स, यू एंड अप क्राइंग, यू नो, छोटी छोटी चीजें आपको ट्रिगर कर देती है. ठीक है, एक्सट्रीम एंजाइटी होती है. सो लाइक फॉर एग्जाम्पल यू कीप ऑन थिंकिंग, इज देयर समथिंग रॉन्ग विथ माई बेबी, यू नो, यू थोड़ा सा उसने अलग तरीके का आवाज कर दिया तो यू फील दैट ओ आई नीड टू कॉल अप माई डॉक्टर ASAP, you know. उसके अलावा स्लीपिंग इश्यूज में, इवन व्हेन द बेबी इज स्लीपिंग यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्लीप, यू कैन नॉट रिलैक्स, मतलब you find it difficult to just, you know, take rest. You feel, what if the baby gets up? Sometimes you end up feeling कि मुझे आवाज आ रही है बच्चे की, should I go and check, right? Then the sleep deprivation is something which is major, because I think babies need to be fed every 2 hours, right? So the breastfeeding mothers, उनका वो sleep deprivation भी हो जाता है, जिसके वजह से there is a lot of irritability that comes in. देन यहाँ पे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी टूवर्ड्स द चाइल्ड, ऑल्सो टूवर्ड्स द स्पाउस, राइट? यू एंड अप ब्लेमिंग योर स्पाउस. थिंग्स आर सेड लाइक आई वाज सो, मेरा बेबी के पहले जो लाइफ था दैट वाज मच बेटर, यू नो. सो ऑल दिस नेगेटिव इमोशंस कम इन, right? The mother has a lot of guilt that what if, you know, I am not a good mother, right? What if I am not doing good? She might feel like बहुत हेल्पलेसनेस लगने लग जाती है, राइट? सो along with that, as I mentioned, कि let me end this, let me end my life, let me do something, and you know, बच्चे को भी मैं ये कुछ कर देती हूँ जिससे this will end, you know. So these concentration में तकलीफ होती है. रोज जो चीजें आप कर पाते थे अच्छे से वो आप नहीं कर पाते, ज्यादा रोते रहते हैं. So these are the symptoms of postpartum depression. And the most important thing would be this, कि if postpartum depression is not treated, if left untreated, it can go on for months to years, right? So यहाँ पे treatment is paramount, right? Dr. Jyotik, do you agree with me? Yeah. नहीं, आपने जो बात बताई है कि what I feel that women consider this depressed mood to be for a lifetime. जब भी ब्लूज जब भी चल रहे होते हैं तो वो लोग ऐसा समझते हैं कि ये तो लाइफ टाइम ही चलेगा, तो इसकी वजह से दे आर नॉट ओपनिंग अप टू देयर नियर एंड डियर वंस, मे बी देयर स्पाउस और मे बी देयर पेरेंट्स. क्योंकि अगर इंडियन कल्चरल सिस्टम में तो ऐसा है कि फर्स्ट चाइल्ड बर्थ होता है तो वो मैटरनल साइड होता है कई बार, तो दे आर नॉट ट्राइंग टू ओपन अप विद पेरेंट्स. तो ये सिम्टम्स जब भी आने लगते हैं तो वो काफी महीने के बाद होता है. तो बेबी ब्लूज अगर 3 महीने से ज्यादा अगर चलता है तो उसको हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन बोल सकते हैं. और ये डिप्रेशन ऐसा है कि वो सेल्फ केयर यानी कि अपनी केयर, बेबी केयर और इवन योर डे टू डे फंक्शनिंग में वो बाधा रूप बनता है. इट क्रिएट्स डिस्टर्बेंस इन ऑल दोस काइंड ऑफ फंक्शनिंग एंड देन इट इज अ डिसऑर्डर. तो यही सारी बात मैं आपको, हाँ जी, हाँ. सो ये तो हो गया डिफरेंस बिटवीन बेबी ब्लूज एंड पोस्टपार्टम डिप्रेशन. सो डॉक्टर ज्योतिक, देन व्हाट डू यू थिंक, what are the steps or what are the things that a pregnant woman should do to, you know, keep her mind and body healthy during pregnancy and, you know, post delivery? What are the things that can be done? Yes, again I welcome many people who have joined later on. So ये जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें कोई दवाई की बात नहीं आने वाली है. सो काफी लोगों को ऐसा लगता है कि सारे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम जो है उसके लिए सीधा डॉक्टर्स मेडिसिन की बात करते हैं. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो इवन फादर या इवन मदर या जो भी प्रेग्नेंट लेडी के साथ जुड़े हुए हैं, the moment you get the news of getting a pregnancy, उसके बाद changes continuously होने ही वाले हैं every day.
सो फर्स्ट ट्राई टू एम्ब्रेस दोज चेंजेस, वो चेंजेस के साथ रहना सीखना जरूरी है। आपने जैसे बताया कि काफी क्वेश्चंस होते रहते हैं कि केयर ले पाऊंगी या नहीं, कैसी मदर बनूंगी, हाउ द फादर विल टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, इवन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज पार्ट। तो वो सब क्वेश्चंस इसीलिए आते हैं क्योंकि हम ड्यू टू दिस टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एंड ड्यू टू मोर ऑफ द इंटरनेट रीडिंग, जो माइंडसेट होता है बिफोर प्रेगनेंसी, इट इज ऑलरेडी बीइंग बॉम्बार्डेड एंड प्रीऑक्यूपाइड विथ मल्टीपल नेगेटिविटी और मल्टीपल थिंग्स जो हमको एक उत्साह से लेनी चाहिए वो हमको पहले से ही पता होती है। से फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन को पूछना कि व्हाट आर दी सिम्टम्स ड्यूरिंग दी फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पहले 3 महीने में आपको क्या क्या चेंजेस हो गए, उसको पता होगा। So they are not very much excited or they are not very much enthusiastic, rather they are very much worried. तो पहले चीज है कि चेंज को एक्सेप्ट करना जरूरी है और वो चेंज अभी रहने ही वाला है फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ योर लाइफ टिल योर चाइल्ड गेट्स मे बी सेटल्ड इन हिज और हर लाइफ। एक तो ये चीज है। दूसरा कि मेंटल हेल्थ वेलबींग अगर रखना है तो डोंट ट्राई टू एक्सेस योर मोबाइल रिगार्डिंग प्रेगनेंसी एंड प्रेगनेंसी रिलेटेड डिसऑर्डर्स एंड डिजीजेस। रादर ट्रस्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट एंड ट्रस्ट योर डॉक्टर और उसके साथ रूबरू आप डिस्कस करना ज्यादा बेटर है रादर देन डूइंग इट योरसेल्फ, बिकॉज pregnancy requires a clinical examination and a clinical expertise for any kind of advice। ये दूसरी बात। तीसरी बात जो सबको पता है कि डाइट एंड एक्सरसाइज, तो प्रेगनेंसी रिलेटेड एक्सरसाइजेस है वो आप गायनेकोलॉजिस्ट से पूछ सकते हैं। व्हाई आई एम टेलिंग टू डू एन एक्सरसाइज मे बी फॉर 20 minutes every day, because exercise will not only build up your physical health but it will release endorphins, it will release the serotonin from your brain which will help you to alleviate वो आपके डिप्रेस्ड मूड को या आपके मूड स्विंग्स को सेटल करने में आपको हेल्पफुल रहेगा। देन कम्स रीडिंग। एक चीज, एक आदत जो छूटती जा रही है लोगों के लिए वो है रीडिंग। हम लोग इंटरनेट पे रीड करना शुरू कर देते हैं, फेसबुक अपडेट रीड करना शुरू कर देते हैं, इंस्टाग्राम पे रीड करना शुरू कर देते हैं। रादर always go for a physical books or physical magazine and try to involve yourself into that physical kind of reading, because physical reading से एक अंदर से एक मोटिवेशन आता है, वो चीज आपका कंसंट्रेशन बढ़ाता है और all the concentrated activities which you do during the pregnancy that will enhance the concentration of your child। एक ऐसा भी स्टडी है कि जो फीमेल्स एक्सेसिव मोबाइल यूज करती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उनके चाइल्ड को इनअटेंशन या अग्रेशन या ऑटिज्म होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो रादर इट इज एडवाइजेबल टू गो फॉर अ फिजिकल बुक रीडिंग देन टू यूज अ मोबाइल। और एक चीज है कि better to listen than to watch, better to read than to watch। यानी listening to music will definitely help you rather than watching a video of a music or of a song। जो लोग बोल रहे हैं कि why we should be very much perception, हमारा perception पे बहुत डिपेंडेंट है कि जितना हम सुनेंगे, जितना हम रीड करेंगे, वो सारी चीजें हमारे चाइल्ड को इफेक्ट करने वाली है। तो ये प्रिंसिपल को लेके ही हमारी जो 9 months की एक्टिविटीज हमको प्लानिंग करनी है। और एक बात ये है कि ऐसा बोलते कि कहाँ तक जॉब करनी चाहिए, कहाँ तक वर्क करना चाहिए। वर्किंग फीमेल्स, वर्किंग लेडीज हैं, तो जहां तक हो सके, जहां तक आपके गायनेकोलॉजिस्ट एडवाइस कर सके, देयर इज नो जनरलाइज टाइम ड्यूरेशन। तो ये कुछ मेंटल हेल्थ वेलबींग की जो बातें थी कि इफ अ फीमेल वो उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपका मेंटल वेलबींग स्वस्थ रह पाएगा। तो लास्टली बात है कि आपने जो डिसऑर्डर्स के बारे में बात बताई, सो व्हेन टू अप्रोच अ साइकियाट्रिस्ट या व्हेन टू अप्रोच अ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, Right. उसके बारे में थोड़ा डॉक्टर बताइए। हाँ जी। Right. So Dr. Jyotik, one point I really wanted to add, which you said about exercise, right? So यहाँ पे ऐसा है कि it is very important to ask
योर डॉक्टर कि क्या एक्सरसाइज मैं कर सकती हूँ और नहीं, बिकॉज इन माई केस मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से आई वॉज पुट ऑन कंप्लीट बेड रेस्ट और मुझे बहुत एक्सरसाइज करने का मन था. सो यू रियली नीड टू बी इन सिंक विथ योर डॉक्टर्स एज टू क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. एंड स्लीप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. जो मैंने नोटिस किया कि नींद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या हो जाता है कि नींद नहीं होती तो चिड़चिड़ाहट बहुत होती है. एंड ड्यूरिंग द लेटर स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी, जैसे 8वें 9वें मंथ में तो नींद बहुत ही मुश्किल होने लगती है बिकॉज ऑफ दैट एक्सेसिव वेट एंड ब्रीदिंग इश्यूज होने लगते हैं. सो आई फील दैट जितना हो सके उतना आप अपनी नींद ले लो, आई फील. मूविंग टू योर क्वेश्चन कि Yes, when हाँ बोलिए ना. I'm sorry. One more thing which I just recalled कि हम लोग ये प्रेगनेंसी के टाइम सिम्टम्स डिजीज ट्रीटमेंट सोनोग्राफी इसमें ही घूमते रहते हैं. तो कई बार फीलिंग लेना बहुत जरूरी है. दैट डू यू फील योर बेबी बीइंग योर, अगर फादर भी है तो डू यू फील योर बेबी, वो फीलिंग लेना बहुत जरूरी है. क्योंकि जब भी सिंक, जो आपने सिंक की बात बताई, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बोथ मदर फादर एंड द बेबी, वो सिंक्रोनाइजेशन अगर रहता है तो मेंटल हेल्थ ड्यूरिंग एंटायर 9 months एंड इवन आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी वो एकदम हेल्दी और इन हार्मनी में रहती है. तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम रूटीन में उसको साइडलाइन कर देते हैं. काफी डिस्कशंस जब भी हस्बैंड वाइफ के होते रहते हैं तो प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशंस होते रहते हैं. तो रादर देन डिस्कसिंग अबाउट प्रॉब्लम्स, ट्राई टू discuss about what are the feelings and what are the changes going on during the entire day. तो इस पे अगर बातचीत रहेगी तो एक दूसरे को आप सुन पाओगे, एक दूसरे को आप हेल्प कर पाओगे. हाँ डॉक्टर, और आप क्वेश्चन वो बता रहे थे, उसका आंसर बता रहे थे, प्लीज. Yes. So when this is a very important question कि ये symptoms तो हमको हो रहे हैं, but when do we know that now we need to approach a mental health professional, right? डॉक्टर ज्योतिक, मेरी आवाज आपको आ रही है ना? क्योंकि मेरे यहाँ पे ना काम चल रहा है, right? Great. So first thing, अगर आपको ये symptoms, if they are more than 2 weeks or more than 14 days, आपको तकलीफ हो रही है, then that is one of the time when you should approach a mental health professional. उसके बाद if these symptoms are making it difficult for you to function and cope with the situations in your daily life, then you need to approach. Along with that, if you feel that your physical health is getting affected because of this, because of properly, if it is hampering your physical health, then you should seek help. Apart from that, if it is difficult, you find it difficult to bond with your baby, to take care of your baby, you're not able to spend that kind of time with your baby जहाँ पे आप जो अफेक्शन जो होता है वो नहीं फील कर पा रहे हो, देन इज द टाइम व्हेन यू नीड टू सीक हेल्प. एंड लास्टली, ये थोड़ा अर्जेंट हो जाता है इफ यू आर हैविंग suicidal thoughts or if you are feeling like hurting yourself or your baby, then it becomes a little more urgent to seek help of a mental health professional. And यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सीधे साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट के पास ही जाए. समटाइम्स आपकी जो गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेटिशियंस होते हैं, इवन यू कैन गो एंड टॉक टू देम व्हेन यू गो फॉर योर रेगुलर चेकअप्स. यू कैन टेल देम व्हाट यू आर गोइंग थ्रू एंड देन दे माइट बी एबल टू हेल्प यू एंड डायरेक्ट यू टू द राइट पर्सन. समटाइम्स इवन पीडियाट्रिशियंस, जो बच्चे के जो डॉक्टर्स होते हैं बेबी के, यू कैन इवन डिस्कस विद देम, बिकॉज मेरे पास एक केस था जिसमें द बेबी वाज नॉट डूइंग दैट वेल हेल्थ वाइज. एंड जब पूछा गया तब पता चला कि द मदर इज नॉट वेरी मच ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पा रही है या उसको मन नहीं कर रहा, व्हाटएवर. सो उसके वजह से वो बच्चे पे असर हो रहा था. एंड दैट इज हाउ वी केम टू नो दैट द मदर इज हैविंग सम सॉर्ट ऑफ mental health issue. So these are a few instances जब आपको help लेनी चाहिए.
डॉक्टर, ऐसा है कि किसी को जैसे साइकेट्रिक डिसऑर्डर है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, डज इट अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड, और डज इट अफेक्ट द चाइल्ड मे बी आफ्टर आफ्टर डिलीवरी और आफ्टर बर्थ? आपको इसका क्या एक्सपीरियंस है? प्लीज लेट मी नो. So I think 100% yes, it affects the health of the child, not just not just the mental health, but the physical health as well, right? Now, if you have some mental health illness during pregnancy, there are chances that you might not take enough care of yourself in the form of eating healthy, in the form of doing exercises, in the form of getting adequate sleep, taking your prenatal vitamins, right? Taking your iron supplements, following certain advices that have been given to you by your OBGY, right? Going to doctor's appointments, etc. So all these things are going to ultimately adversely affect the health of the baby as well, right? ऐसा देखा गया है कि babies who are born to mothers with depression have low birth weight. उसके अलावा देर इज अ रिस्क ऑफ प्री मेच्योर डिलीवरी. बेबीज आर प्री टर्म डिलीवरी वेर इन बेबीज आर बोर्न प्री मेच्योरली. So what happens? This requires then NICU stay for the baby, or some sort of special care needs to be taken for the baby, जिसमें you cannot take the baby home immediately. So these things are there which will affect the baby. I'm so sorry. It's okay. Yeah, please, Anyway, please. so हाँ, तो then apart from yeah, that, हाँ. yeah. Huh. So apart from तो that, what happens is after the delivery, the bonding, mother baby bonding, वहाँ पे issues होने लगते हैं. So see, bonding is not just taking care of the baby and feeding the baby. It is about holding the baby, hugging the baby, the body language, the eye to eye contact, right? All the smile, all these things are there which help you bond, right? And if the secure attachment is not formed with the baby can develop trust issues. The baby can develop a lot of issues while growing up, right? Like for example, the baby might be a little passive, ज़्यादा interaction नहीं करेगा, ठीक है? उसके developmental milestones might get delayed. उसके behavioral issues हो सकते हैं, जिसमें उसको behavior के बहुत सारे problems हो सकते हैं, right? And कोलिक, छोटे बच्चे को कोलिक, छोटे बेबी को कोलिक की प्रॉब्लम हो सकती है, स्लीप प्रॉब्लम हो सकती है. एंड देयर आर सम स्टडीज विच से कि लेटर इन द लेटर लाइफ द बेबी might have symptoms of attention deficit sorry attention deficit hyperactivity disorder, ADHD. So these are the few things that yes, definitely is going to affect. And if starting के time में the baby keeps on crying the entire day, like not entire day but ज़्यादा रोता है, and the mother after a few days becomes attuned to ये रोना किस चीज का है. Is he hungry? Is he having stomach pain? क्या उसका डायपर चेंज करना है? क्या उसको नींद आ रही है? And you can understand the cues that the baby gives you. But a depressed mother might not be able to differentiate between those cues, and then she might feel like a failure कि यार मैं तो इतना भी नहीं कर सकती, right? So yes, it does affect the baby, and chances of depression and anxiety in these babies might also be high in the future. Yeah. So lastly, what I would like to discuss is the role of spouse or family members, or maybe those who are connected with the pregnant lady. तो इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी है और उसके बाद में इंस्टा लाइव हम लोग एंड करेंगे. तो छोटी स्टोरी में आपको समझ में आ जाएगा that how you should support the pregnant lady. तो ये स्टोरी सबने सुनी तो होगी, पर इट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशन टू दैट. कि आपने वो 7 पूंछ वाले उंदर रेट की कहानी सुनी होगी कि चूहा था जिसको 7 पूंछ थी. तो वो हर दिन स्कूल जाता था, और पहले दिन स्कूल गया तो स्कूल में जो उसके कॉलीग्स थे उसने बोले तेरे तो 7 पूंछ है, और ऐसा 7 पूंछ वाला उंदर तो चूहा हमने देखा नहीं है कहीं भी. तो उसकी मजाक उड़ाने लगे, उसकी मस्ती करने लगे, उसकी पैर खींचने लगे. तो चूहा रोते रोते घर आ गया.
और उसने अपने मम्मी को कंप्लेन किया कि वहां तो सब मेरी मजाक उड़ा रहे हैं, अब मैं क्या करूं, मेरी तो 7-7 पूंछे हैं। तो उसकी मम्मी ने ऐसा बोला, एक काम कर बेटा, एक पूंछ कटवा ले अपनी, फिर तो 6 हो जाएगी, तो 6 6 में तो कोई तुझे परेशान नहीं करेगा। तो उसने अपने मम्मी की बात मानी और फिर उसने एक पूंछ कटवा ली और दूसरे दिन वापिस वो खुश होते होते स्कूल गया। तो दूसरे दिन भी उसके कॉलीग्स ने उसको वापिस मजाक करना शुरू कर दिया, चिढ़ाना शुरू कर दिया कि ये तो 6 पूंछ वाला उंदर है, 6 पूंछ वाला चूहा है, ऐसा करके। तो देन again it was the same routine for next 6 days altogether। एक एक दिन करते करते वो एक पूंछ पे आ गया और उस दिन उसको ऐसा लगा कि नहीं, नाउ आई एम इक्विवेलेंट टू ऑल दी रेट्स, कि अभी मेरे पास एक पूंछ है तो सभी चूहों के पास एक ही होती है, तो अब मुझे कोई कुछ नहीं बोलने वाला है। अब मैं जा रहा हूँ स्कूल से, अच्छे से पढ़ूंगा, सब मेरे फ्रेंड्स भी बनेंगे। तो वापिस वो गया, तो वापिस उसके जो कलीग्स थे उसने उन्होंने चिढ़ाना शुरू कर दिया, ये तो एक पूंछ वाला उंदर है, ये तो एक पूंछ वाला चूहा है, ऐसा चूहा हमने कभी देखा नहीं है। तो उसने अनफॉर्चुनेटली वो एक पूंछ भी कटवा ली और बाद में फिर जब भी वो गया तो वापिस रोते रोते यही चलता रहा कि पूंछ बिना का चूहा है, पूंछ बिना का चूहा है। तो ये मॉरल ऑफ द स्टोरी ऐसा है कि आप जितने लोगों की सुनते जाओगे उतने आप दुखी होते जाओगे। जितनी सब चीजें आप दूसरे लोगों की पढ़ते जाओगे, सुनते जाओगे, एडवाइजेस लेते जाओगे, उतने प्रेगनेंसी में आप दुखी होते जाओगे। एंड इट इज नॉट रिलेवेंट टू ओनली प्रेग्नेंट लेडी, it is relevant to even father, it is relevant to even grandparents and नाना नानी, चाचा चाची, मौसा मौसी, whoever it is। आपको ये देखना है कि प्रेग्नेंट लेडी वो पहले कैसे उनका उनका नेचर रहा है, वो आपके फैमिली में कैसे रहे हैं, प्रेगनेंसी होने के बाद उनमें जो बदलाव आ रहे हैं वो कितने हद तक नॉर्मल है, कितने हद तक वो अपने आप को मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं। तो ये सपोर्ट आपको देना जरूरी है। काफी टाइम क्वेश्चनिंग में चला जाता है कि क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, रादर देन सिंपथाइजिंग। आपको उसको कंसोल नहीं करना है, आपको एम्पथाइज करना है कि आपको डिप्रेशन हो रहा है, आपको अंदर से चिंता हो रही है, आपको गुस्सा हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ। आओ इसके बाद में इसके बारे में बैठ के डिस्कशन करते हैं, आपको कहाँ कहाँ मुश्किलें आ रही है, कहाँ कहाँ आपको चिंताएं हो रही है। तो ये एक जो ट्रांसपेरेंट टॉक है ये होना बहुत जरूरी है। एंड दिस ट्रांसपेरेंट टॉक विल नॉट ओनली एनहांस द प्रोसेस ड्यूरिंग द डिलीवरी बट इट विल ऑल्सो एनहांस द पेरेंटिंग आफ्टर द डिलीवरी। और ये पेरेंटिंग हम अगर जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो इवन ग्रैंड पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन दिस पेरेंटिंग एज वेल। सो जितना हार्मनी, जितना ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन, जितना एक दूसरे के प्रति एम्पैथी अगर रहता है तो आप दूसरे फालतू बिना वजह के नॉन मेडिकल एडवाइजेस आप फॉलो नहीं करेंगे और अपने मेंटल वेल बीइंग यानी कि मानसिक आरोग्य और इवन फिजिकल हेल्थ को आप इंटैक्ट संभाल पाएंगे। तो आशा करता हूं या हम लोग आशा करते हैं कि all this information will be helpful to you, even those people who have joined on this Insta live। thank you so much for being with us। thank you Dr. Sneha for your valuable inputs and sharing your experiences। और ऐसे ही अलग अलग टॉपिक के साथ वापिस हम कभी जब भी टाइम होगा तो इंस्टा लाइव पे वापिस अब हम लोग जुड़ेंगे। एंड विद दिस नोट वी विश यू a very happy and safe and healthy motherhood and parenthood to your family। thank you so much। Thank you so much. thank you। okay, take care and have a nice time। I am ending this live। thank you। thank you। Bye. bye bye bye।